آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں بھی اپوزیشن کے لانگ مارچ کی تیاریاں جاری ہیں۔ سابق گورنر پنجاب اور صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے شہر کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد ہو چکا ہے۔ ان کا مزید کا کہنا ہے، دیکھیے عاصم صدیق کی رپورٹ۔ مخدوم سید احمد محمود کہتے ہیں کہ ان سمیت لوگ سوچتے تھے کہ عمران خان ملک میں ترقی لائے گا، مگر عمران خان میں اہلیت ہوتی تو نہ روپیہ گرتا نہ حکومت ناکام ہوتی۔ عمران خان کے جانے سے نحوست ختم ہوگی اور برکت آئے گی۔ پاکستان سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، یہاں پر گڈ گورننس ہو، یہاں پر صحت، تعلیم، سینیٹیشن کا انتظام بہتر ہو۔ صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے قافلے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ان کے پارٹی کے 25 MNA اور اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس بہت بہترین موقع تھا۔ اگر عمران خان صاحب میں یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ پنجاب کی لیڈرشپ کو، سندھ کی لیڈرشپ کو، بلوچستان کی لیڈرشپ کو، خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کو، سب کو ملا کے یہ عہد کرتے کہ آؤ مل کے پاکستان کو ٹھیک کریں، تو نہ آپ کا روپیہ گرتا، نہ آپ کی اکانومی نیچے جاتی۔ مخدوم سید احمد محمود نے کہا کہ عمران خان نے بجلی، پٹرول اور گیس کی قیمتیں بڑھا کر مہنگائی خود کی۔ ملک میں صنعتیں بڑھانے کی بجائے ان پر FIA بڑھا دی گئی۔ ملک سب کا ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا مل کر پاکستان چلائیں گے۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ رہنے والوں کو نہیں بھولیں گے۔ ملتان میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر اقبال سراج نے حمزہ شہباز سے ملاقات کے احوال روہی کو بتایا، کہا پارٹی بدلنے والوں کو عوام مسترد کر دے گی۔ جنید انور کی رپورٹ دیکھیے۔ ہولڈر رانا اقبال سراج کی روہی سے گفتگو، کہنا تھا کہ پارٹی بدلنے والوں کو عوام مسترد کر دے گی۔ حمزہ شہباز نے واضح کر دیا کہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حمزہ صاحب نے مجھے کہا کہ رانا صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جس طرح مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں، انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ایسے کھڑا رہوں گا اور آپ کے ساتھ ہوں۔ رانا اقبال سراج کا کہنا تھا کہ ہم نے مشکل وقت میں پارٹی کو خیر آباد نہیں کہا، پارٹی کا ہم پر مکمل اعتماد ہے۔ اس حلقے سے الیکشن لڑا ہے میں نے، مشکل وقت میں نے پارٹی کا ساتھ دیا ہے اور عوام کا ساتھ دیا ہے۔ آج ہم اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، تو ان کو تو لوگ گندے انڈے ماریں گے اگر یہ نون لیگ میں آئیں گے تو۔ اقبال سراج کا کہنا تھا کہ میری جگہ کسی نئے آنے والے کو پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی۔ نون لیگ میں شامل ضرور ہوں مگر صرف ٹکٹ کے لالچ میں نہیں۔ عوام ایسے لوگوں کا جوتوں اور گندے انڈوں سے استقبال کرے گی۔ کیمرامین سفیر حیدر کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان میں مسلم لیگ نون کا PP 262 کا اجلاس، ضلع جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون اور سابق MNA میاں امتیاز احمد نے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اجلاس میں اسلام آباد میں ہونے والے PDM جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا کہ عاصم صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ رحیم یار خان میں مسلم لیگ نون PP 262 کی بیٹھک اسلام آباد میں PDM جلسہ میں شرکت کے لیے قافلوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کونسلرز مسلم لیگ نون اور JUI کے رہنماؤں نے تجاویز پیش کی۔ سابق MNA میاں امتیاز احمد کا کہنا تھا کہ 28 تاریخ کی صبح قافلے رحیم یار خان سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ رحیم یار خان سے ہزاروں افراد جلسے میں شریک ہوں گے۔ جیسے ہمارے قائدین نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ PDM کے پلیٹ فارم سے ہم نے 28 تاریخ کو اسلام آباد پہنچنا ہے اور ہم نے یہاں سے قافلے لے کے اسلام آباد کی طرف یہاں سے 28 تاریخ کو ہم صبح نکلیں گے، تو 28 کو شام انشاءاللہ اسلام آباد میں جلسے میں ہم شریک ہوں گے۔ نائب صدر لائرز ونگ پنجاب سردار ظفر خان ترین نے کہا کہ کارکنان کو جلسہ میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی گئی تو لائرز ونگ کارکنان کو قانونی تحفظ دے گا۔ ڈیوٹیاں جو ہے پورے پنجاب کے اندر تفویض کر دی گئی ہیں اور یہ تمام کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ سارے کے سب جو ہے انشاءاللہ 28 تاریخ کو جو اسلام آباد جائیں گے اور اس فیشسٹ حکومت کو انشاءاللہ تعالیٰ گرا کے آئیں گے۔ ہمارا کام جو ہے وہ ہم شرکت بھی کریں گے اس میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پر بھی کوئی زیادتی ہوگی، اگر پولیس زیادتی کرتی ہے یا کسی بھی طرح سے اگر ان کو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہے تو اس کے لیے جو قانونی جو ہے وہ معاونت جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ PP 262 کا قافلہ گاڑیوں کے ذریعے موٹر وے کے راستے اسلام آباد روانہ ہوگا۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ اپوزیشن کے اسلام آباد جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ بہاولپور میں اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے۔ سابق میئر بہاولپور اور مرکزی جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ نون لیگ عقیل نجم ہاشمی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت عدم اعتماد کی تحریک کا پروسیس قانون کے مطابق جلد نہیں ہونے دے رہی۔ محمود ظہیر کی رپورٹ۔
बहावलपुर के लीगी मतवाले इस्लामाबाद जलसा में शिरकत के लिए पुरजोश। साबिक मेयर बहावलपुर वकील नजम हाशमी कहते हैं कि हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक का प्रोसेस कानून के मुताबिक नहीं होने दे रही। हर पाकिस्तानी को मौजूदा सूरत हाल में जमहूरियत के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। एक गिरती हुई हुकूमत को अदम एतमाद का सामना है। मैं ये देखता हूँ रोजाना टेलीविजन पर एक सिलेक्टेड वजीर आजम ये कहते हैं कि जी अदम एतमाद को मैं नाकाम बना दूंगा, लेकिन वही अदम एतमाद वो उसकी जो तहरीक है वो असम्बली में आने नहीं दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला लेकिन कानून का रास्ता रोका नहीं जा सकता, वो अदम एतमाद की तहरीक आएगी। और वजीर आजम का लहजा बता रहा है, वजीर आजम की धमकियां बता रही हैं, वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर और रहनुमा मुनव्वर हयात अब्बासी ने भी इस्लामाबाद जलसे के लिए प्लानिंग करने वाले इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बेहतर हिकमत अमली के तहत इस्लामाबाद जलसा 2 रोज के लिए मुलतवी किया है। मियाँ साहब ने जो ये हमारा लाहौर से जो लॉन्ग मार्च रवाना होना था 24 को, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हिदायत के मुताबिक उसे 2 दिन आगे कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला 26 से हमारी शमाए मुस्लिम लीग, बीबी मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में हमारा काफिला रवाना होगा। मुस्लिम लीग नून और यूथ विंग के नौजवान इस्लामाबाद के जलसे में पहुंचने के लिए बेताब हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के हुक्म पर वो जमहूरियत बचाने के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मेरी खान में महंगाई ने गरीबों से ठंडी हवा भी छीन ली। एयर कूलर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। शहरी कीमतें सुनकर परेशान हैं। आशिर इशफाक की रिपोर्ट। डेरा गाजी खां में महंगाई ने गरीबों से ठंडी हवा भी छीन ली। एयर कूलर की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। मार्केट में सोलर पर चलने वाले एयर कूलर 5 से 6 हजार रुपए, जबकि इलेक्ट्रिक एयर कूलर 12 से 14 हजार रुपए तक फरोख्त होने लगे। रेट बहुत महंगे है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम कूलर लेके गया था तो 4000 का सोलर का मिल गया था। अब जब मार्केट को मैंने देखा तो वो 5000 वो 6000 को पहुंच गया। इस तरह वाबड़ा का कूलर था वो 7000 में मिल जाता था, अब 10,000 में पहुंच गया। एयर कूलर की खरीदारी के लिए आए शहरी कीमतें सुनकर परेशान दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मर्तबा एयर कूलर की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। चादर के रेट तो बढ़े हैं, लेकिन कूलर के रेट भी बढ़ गए हैं इस हिसाब से। इस तरह मोटर भी महंगे रहे, हर चीज महंगे रहे, लेकिन इस हिसाब से जो है काम चल रहा है। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना था कि कूलर बनाने वाली चादर की कीमत आसमान पर जा पहुंची है, जिसकी वजह से एयर कूलर की कीमतों में इजाफा हुआ है। कैमरामैन टीम के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। कोटद्दू तहसील के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से घी और आटे की सप्लाई बंद है। 1000 रुपए सब्सिडी वाले गरीब शहरी स्टोरों के चक्कर काटने लगे हैं। तैमूर अतहर की रिपोर्ट। अवामी रिलीफ के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ देने में नाकाम। कोटद्दू तहसील के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से घी और आटे की सप्लाई मुअत्तल है, जिसकी वजह से गरीब अवाम शदीद परेशान है। 1000 रुपए सब्सिडी वाले और दिहाड़ीदार मजदूर रोजाना की बुनियाद पर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटे के लिए चक्कर काटने पर मजबूर हैं। कोटद्दू शहर के 3, चौक सरवर शहीद के 3 और दायरा दिन पनाह, चकरदरी, एहसानपुर, सनामा, महमूद कोट, गुजरात, अड्डा गढ़माली में एक यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला घी और आटा मौजूद नहीं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि घी आटा न होने से स्टोर्स पर वीरानी के डेरे हैं। लोगों को अशिया जरूरिया के लिए बाजार जाना पड़ता है। तो बेसिक नीड्स है ना इंसान की, तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत से अपील करते हैं कि इन चीज़ों को फौरी तौर पे अमल में लाए और यहाँ पे अवेलेबल। घी, चीनी, आटा ये ज़रूरियाती अशिया हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो हमें नहीं मिल रहा है यहाँ स्टोर से। बाकी अशिया जो बाहर बाजार के रेट के मुताबिक मिल रही है वो यहाँ पे दस्तियाब है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटे की दस्तियाबी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए, ताकि शहरी सस्ती अशिया बआसानी खरीद सकें। कैमरा टीम के साथ तैमूर अतहर, रोही, कोटद्दू। 7 बरस कबल शुरू किया जाने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। बहावलनगर के इलाके खालिद मकबूल पार्क जटवाला रोड टूट फूट का शिकार है। धूल मिट्टी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। कासिम अली शेख की रिपोर्ट। 7 साल कबल खालिद मकबूल पार्क से जटोवाला लिंक रोड की तामीर के काम का आगाज हुआ, लेकिन आज तक मुकम्मल न हो सका। रोड पर पत्थर और मिट्टी डाल दी गई, लेकिन तामीर ताहाल मुकम्मल न हो सकी। गुजरने वाले और रिहायशी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे काम शुरू हुआ था, उस वक्त जो था यहाँ पे रोड़ी फेंक दी गई थी, उसके बाद खाका बना दिया गया था और बस थोड़ा बहुत काम हुआ था, खाका वगैरह डाल के और ठेकेदार वगैरह गायब हो गए थे। इसकी वजह से हमारे महल्ले वाले भी परेशान हैं, आने जाने वाले लोग भी परेशान हैं, जिसकी वजह से हादसात का शिकार हो रहे हैं। रोही से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि रोड की तामीर का काम 7 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। अधूरे रोड की वजह से जहां मिट्टी धूल की वजह से मुश्किलात का सामना है, वहीं हादसात भी मामूल बन गए हैं। 7 साल गुजरने के बावजूद सड़क की तामीर का काम मुकम्मल न होने की वजह से अदारों और इंतजामिया की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ गई है।
दूर दूर तक ये इलाका फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि यहाँ की सड़कें भी ठीक नहीं है, आने जाने वाले भी परेशान हैं। लाखों रुपए के फंड्स खर्च होने के बावजूद रोड की तामीर न होने से जहां फंड्स का ज़िया है, वहीं शहरियों को भी अधूरी सड़क से मुश्किलात का सामना है। लिहाजा इदारों को फौरी तौर पर अधूरे काम को मुकम्मल करना चाहिए। कैमरामैन शहरियार के साथ काशिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। मुल्तान के ताजर सेफ बाजार प्रोजेक्ट के लिए सरगर्म है। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और ट्रेडर्स एसोसिएशन अकबर रोड चौक शहीदा ने इस हवाले से तकरीब सजाई है। मजीद देखिए माज बिन शफीक की रिपोर्ट में। मुल्तान के ताजिर सेफ बाजार प्रोजेक्ट के लिए मुतहर्रिक मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान और ट्रेडर्स एसोसिएशन अकबर रोड चौक शहीदा मुल्तान ने इस हवाले से तकरीब का एहतमाम किया। सीपीओ मुल्तान ने भी तकरीब में शिरकत की और ताजिरों के गिले शिकवे सुने। मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान कुरैशी ने मुतालबा किया है कि अंदरूने शहर में भी एक पुलिस चौकी होनी चाहिए ताकि वारदातें कम हों। जब ताजर बरादरी के मसाइल हल नहीं होते, जब चोरियां डकैतियां होती हैं और पुलिस तसल्लियां देती रहती है, तो तसल्लियों के बाद कुछ नहीं होता। मगर कुछ अफसरान जैसे कि आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी काविश, अब एसएसपी ऑपरेशन भी बैठे हुए हैं, जो आप काबिज कर रहे हैं उसी को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। सीपीओ मुल्तान खुरम शहजाद ने ताजिरों को इनके मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी कराई। इनका कहना था कि ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ देना इनकी अव्वलीन तरजीह है। लेकिन आपका इंटरएक्शन इतना होना चाहिए कि वो सुलझाव भी करें और उसका सलूशन भी आपको प्रेजेंट करें। अगर कोई एसएचओ इस काबिल नहीं है तो वो इफेक्टिव एसएचओ नहीं है। मुल्तान के 1.5 दर्जन से जायद बाजारों में अब तक सेफ बाजार प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा चुके हैं, जिससे बाजारों में ताजिरों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल में काफी हद तक कमी आएगी। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ मास बिन शफीक, मुल्तान। टीबी के आलमी दिन पर डीएचक्यू अस्पताल मियांवाली में आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। डीसी खुरम शहजाद, सीओ हेल्थ डॉक्टर अमीर अहमद और एमएस सईद शेख समेत वकला और शहरियों ने तकरीब में शिरकत की। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। भर की तरह मियांवाली में भी टीबी का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से डीएचक्यू अस्पताल में आगाही तकरीब सजाई गई। सीओ हेल्थ डॉक्टर अमीर अहमद खान का अपने खिताब में कहना था कि हुकूमत हर सतह पर टीबी के खात्मे के लिए काम कर रही है। अद्वियात और टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होते हैं। टीबी के हवाले से आगाही की कमी है। और पाकिस्तान का जैसे नंबर 5 पे आ रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हर 10वां मरीज हम सस्पेक्ट में डाल रहे हैं उसको। उसके बाद उसके टेस्ट होते हैं, उसकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होते हैं फ्री ऑफ कास्ट होती है, मेडिसिन उसको फ्री मिलती है। टीबी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसन नवीद ने कहा कि जिला भर में 70 सेंटर कायम हैं जहां पर मुफ्त टेस्ट और अद्वियात दी जाती हैं। गुज़श्ता साल 3000 मरीजों का इलाज किया गया है। हमारे जिले के अंदर तकरीबन 17 सेंटर है जहां पर इसका सेंटर इलाज मुफ्त और तशखीस मुफ्त हो रही है। पिछले साल तकरीबन 3000 से ज्यादा मरीज थे जिनकी तशखीस की गई और मुफ्त इलाज किया गया। टीबी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मलिक उबैद का कहना था कि 1980 से वकला बिरादरी टीबी के खिलाफ काम कर रही है। गरीब मरीजों को टीबी एसोसिएशन ने राशन भी दिया है। एंटी टीबी एसोसिएशन बेसिकली 1980 से लेके अब तक वकला बिरादरी इसको रन कर रही है। डीसी खुरम शहजाद का मानना था कि मुआशरे के हर फर्द को टीबी के खात्मे के लिए किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बीवीएच हॉस्पिटल में टीबीएल के आलमी दिन पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में एमएस विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर फयाज करीम, प्रोफेसर डॉक्टर आजम मुश्ताक समेत दीगर डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी के रकान ने शिरकत की। भावलपुर में भी टीबी का आलमी दिन मनाया गया। विक्टोरिया अस्पताल में इस हवाले से आगाही वॉक की गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फयाज करीम का इस मौका पर कहना था कि टीबी वाले घबराने की जरूरत नहीं, ये काबिल इलाज मर्ज है। मुल्क में हर 10वां शख्स टीबी का मरीज है। टीबी खतरनाक मर्ज है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, काबिल इलाज मर्ज है। ये मर्ज फैलता है, एक से दूसरे को फैलता है। वर्ल्ड सर्वे के मुताबिक जो आबादी है हमारी पाकिस्तान की, उसमें से हर 10 में से एक शख्स को टीबी है। टीबी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर आजम मुश्ताक ने कहा कि टीबी वायरल मर्ज है और एक से दूसरे को लग जाती है, इसलिए एहतियात जरूरी है, लेकिन टीबी के मरीज को अछूत नहीं समझना चाहिए। ये जरासीमी बीमारी है और एक से दूसरे को फैलती है और मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। अगर हम इलाज इसका में देर करें या गफलत करें या सही इलाज मरीज न ले
तो मजामती टीबी होने का खतरा होता है। डॉक्टर्स का कहना था कि टीबी, दमा, सांस की एलर्जी अलग अलग मर्ज है, टीबी का मुश्तबा मरीज है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।